Hey traders, a very warm welcome. It's 10th May, 8:45 p.m. and I welcome you all to market analysis and outlook for Bank Nifty for Monday, which is 13th May. Because now it's the start of the weekend, and the aim for traders should be to maximize their learnings and take a relaxation from all the stress and anxiety from trading from all these 5 days, Monday to Friday. And it will be anxiety if your week is in a loss, and it will be happiness if your week is in profit, right? So let's start with the analysis, and we'll see that what strategy we discussed yesterday for today's market, what crucial levels we marked. Did the market performed as we expected, or it did not? And if it did not, why? Right? So, and I would like you to tell I would like to tell you some crucial points on the charts, since it's the week's closing, right? So without wasting any time, let's go to charts. But before that, I'll take you once to our Telegram group. Yeah, so our day started here, and I gave a my intraday setup for Bank Nifty, right? What did I mention is flattish to gap up opening. If we cross and sustain 47,620, minor upside can be seen till 47,900. 47,900 can again be a selling zone. Did the market perform that way? Yes, market went till 47,900, and it straight took a resistance from the zone which we marked in this area, right? After that, I gave a strategy that I'm playing the view little upside. We saw some profits, and today I did not give any much trades. And if you can see, I gave a mid market update that the market can perform like this. And if you can see, the market exactly cut, copy, paste performed like this. So if we are giving any updates mid market, please take it seriously. There are reasons backed by data. That's why we are giving such analysis, right? We'll again go back to the Telegram group, right? So these three red circles is the area where most of the sellers SL will be there. The market did not breach that level, and we saw a downward momentum towards 47,400, right? So this was my analysis yesterday, and the market exactly cut, copy, paste performed in a way which we expected, right? So this was yesterday's view. Now we'll clear the drawings, right? And we'll look what do we have to discuss for Monday. Okay. So कैसा है ना कि मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे. मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट में एक मैसेज भी डाला था कि गेट्स आर ओपन फॉर 47,000, 47,400 गॉन. बट वहाँ से थोड़ा सा ऊपर शूट किया मार्केट, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने 47,400 आज एक बार तो ब्रीच किया था. मार्केट 47,300 तक भी आया, बट मार्केट ने 47,300 पे सपोर्ट ले लिया, राइट? एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गिव अ क्लोज बिलो 47,444, बिकॉज दिस वॉज प्रीवियस डे लो. अगर आप बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग देखोगे तो 47,421 आए, विच इज़ अ परफेक्ट क्लोजिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? First of all, I'll clear all these drawings, and we'll start with daily chart, right? So if you can see, right, we have exactly closed. This is on charts, but the average closing has come around to the point 420, right? So we have closed previous day's low, below previous day's low. And I would like to point out one thing which I've pointed out earlier also. We are moving, not we, Bank Nifty is moving in a channel from long time, and it has not given a breakout or breakdown from this channel, right? If you remember, if you are our regular viewer, we mentioned at this point when the Bank Nifty was at levels of 49,000, we mentioned at this point that if markets continue to make red bearish candlesticks here, the market will start its trajectory towards the downward side, and it has happened. The whole of this week, this has happened, the same thing as we expected. And the markets, if you go and see one of our old videos on Bank Nifty, right, we have clearly anticipated that this down movement will come if we see a resistance from here, and it has come, right? So the now market, the Bank Nifty has to take a decision from here. If Bank Nifty breaks down this level, this channel on Monday, if we see a breakdown,
द मार्केट्स फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स विल बिकम वेरी बेरिश फॉर मी, ठीक है। अभी भी मार्केट्स मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स ऑन मंडे, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ। कितने सेशंस हो गए हैं? देर हैज़ बीन आई थिंक अराउंड 8 सेशंस। द मार्केट हैज़ बिन गोइंग इन रेड फॉर स्ट्रेट 8 सेशंस, राइट। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस भी दिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडलस्टिक बना दी। सो बैंक निफ्टी इज सेइंग समथिंग, राइट। ऐसा अगर आप हिस्ट्री में देखो, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 साल या एक से डेढ़ डेढ़ से 2 साल, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 8 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडलस्टिक्स मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे बन गई हो। सो दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी इग्नोर्ड। मैं तो नहीं इग्नोर करूंगा यहाँ पे, राइट। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग इन द मार्केट्स। कुछ तो गलत है मार्केट में कि बैंक्स को बेचे जा रहे हैं, लोग बेचे जा रहे हैं, राइट। देर इज सम प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी, एंड still I have not seen any major news on bank nifty, right? Other than HDFC results very bad. अगर मैं आपको अभी एक बार HDFC बैंक का रिजल्ट दिखाऊंगा, 1560 पे था, अभी 1430 पे चल रहा है, 1560 पे था वो, राइट। सो काफ़ी मतलब डेंजरस सिनेरियो है अगर ये चैनल ब्रेकडाउन होता है। सो वी कैन इजीली सी द लेवल्स ऑफ 45,000। कमिंग टू, देखो जो हमारा वीकली और मंथली आउटलुक है वो एक बार हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ताकि लंबी ना हो, मैं ये चैनल का एक बार मैं मेरे को सिर्फ आपको बताना था मार्केट में चल रहा है डेली पे। तो अब देखो डेली में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मंडे को अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, एंड ये लेवल निकालता है प्रीवियस डे लो, मैं मार्क करूंगा अभी, प्रीवियस डे लो निकालता है, तो प्रीवियस डे लो या 47,300, वही है 47,300 है प्रीवियस डे लो, मार्केट अगर निकालता है, पहला लेवल आएगा 47,000। 47,000 पे एक बाउंस लेगा मार्केट, वापस 47,200 250 पे आएगा, एंड इट विल स्टार्ट अ बिगर डाउनवर्ड जर्नी। मेरे हिसाब से एक मार्केट अपनी एक बिगर जर्नी स्टार्ट कर सकता है इस चैनल पे। तो मार्केट का फिर अगर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया, अगर 47,000 ब्रेक्स, राइट, so market can continue its movement towards the level of 45,000, something like this, right, and this lower end of the channel, of the lower channel, will be achieved, okay. But if on Monday markets open gap up and sustain above previous day high, or it does not breach the previous day low, markets can show you a momentum ऑफ साइडवेज, मार्केट्स कैन बी साइडवेज। देखो मार्केट्स हमेशा क्या करते हैं, जब इतना कंटिन्यूस सेलिंग आ गया ना, ये एग्जैजरेशन है हमेशा मार्केट का, ये एल्गो पे चल रहा है और एल्गो बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, जब तक वो एल्गो की सेलिंग ख़त्म नहीं होती। सो इतना स्ट्रेट के बाद ऐसा स्ट्रेट नहीं आ सकता, इतना ग्रेव सिनेरियो नहीं हो सकता इधर। मार्केट को यहाँ पे थोड़ा मतलब एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे 2 दिन मार्केट को यहाँ पे साइडवेज रहना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट अगर देता है तो अच्छा फॉल होगा। क्योंकि 8 दिन से अगर आप देखोगे, 8 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है, एंड इट हैज़ टू टेक अ यू नो पुल बैक समवेयर, ओके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो एक ऐसा हेल्दी पुल बैक आ जाए इस रैली का 30% 40% यहाँ तक या यहाँ तक, और उसके बाद डाउन रैली कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मैं एक बार ये दोनों चैनल और सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रैटेजी, एक ओवरव्यू पे एक स्ट्रैटेजी क्लियर है। अगर गैप डाउन खुल के 47,000 ब्रीच करता है, बेचते चले जाओ जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता अप साइड पे, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो, अप साइड पर बेचो। बट मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, सिंस मार्केट में इतनी सेलिंग आ चुकी है, मार्केट हैज़ टू टेक अ पॉज हियर, डेटा बनने के लिए मार्केट को पॉज लेना होगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड कर सकता है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। तो अब मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, ये तो एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। देखो मार्केट ने हमको अपने आप ही लेवल्स दे दिए, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक केयर ऑफ, ओके लेट्स फर्स्ट एज पर आर रिचुअल मार्क प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, राइट। This is a reason why we mark this, right? So if the levels, if the prices are crossing previous day high, it's a high probability trade, previous day high के ऊपर निकलता है मार्केट, तो आपको अच्छी रैली देखने को मिलती है। इफ द मार्केट्स क्रॉस प्रीवियस डे लो, आपको एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिलती है, राइट। सो प्रीवियस डे, अपना प्रीवियस डे हाई होगा मंडे के लिए 47,871, एंड इट विल बी द पॉइंट जहाँ पे मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हल्का सा अगर खुलता है, तो मार्केट फिर, मार्केट के पास अभी स्पेस है ऊपर जाने की, तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा। सो द नाउ मार्केट हैज़ टू रेंजेस, 47,871 एंड 47,300, ये 500 पॉइंट का रेंज, और इस
दोनों रेंजेस के बाहर यहाँ पे देखो कॉल सेल होंगे खूब सारे, यहाँ पे पुट सेल होंगे। तो उन कॉल सेल या पुट सेल को निकलने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, मार्केट है विल स्पेंड टाइम हेयर, और उसके बाद मार्केट एक बार डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या नीचे। तो अगर फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है तो हमें फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला 47,590। उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है 47,871। यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेगा क्योंकि पिछले प्रीवियस डे हाई है, मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर यूँ आ सकता है। अगर यहाँ पे बेस बनाते हैं तो मार्केट इसके ऊपर निकलता है। अगर मार्केट 47,871 के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल हमें जो देखने को मिलेगा स्ट्रेट, वो देखने को मिलेगा 48,000 आप मान लो, राइट। ये 48,000 आपने आके 48,000 निकलेगा, उसके ऊपर तो सीधा फिर ये वाला लेवल हमें मिल जाएगा, राइट। ये देखो मैं मार्क करता हूँ 48,200 मान लो मोटा मोटा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो मैं लेवल्स दूंगा नहीं। ऑन द डाउन साइड अगर प्रीवियस डे लो निकलता है जो वापस बहुत नियर है, अगर प्रीवियस डे लो निकलता है तो 47,000 स्ट्रेट लेवल है, और 47,000 ब्रीच होता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट है नीचे के लेवल्स निकालने के लिए। इफ 47,000 ब्रेक्स, पहला आएगा 47 46,600, उसके बाद 46,500, बट मैं 46,600 से नीचे लेवल दे नहीं रहा हूँ अभी। मिड मार्केट में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी देखो एक बहुत बड़ा सेलिंग मोमेंटम हमें मिल चुका है। मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि प्लीज़ कॉशन, जिसने यहाँ से पोजिशनली शॉर्ट किया होगा उसको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। अब इतने बड़े शॉर्ट रैली के बाद मार्केट एक पुल बैक दिखाएगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है, बट मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी कभी कभार नहीं होता। तो मार्केट एक डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करके या तो 46,600 से सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार दो बार और हाई प्रोबेबिलिटी की तीसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट बना देगा, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपके लिए जोन्स मार्क कर देता हूँ, सप्लाई और डिमांड जोन्स, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको सिखा के रखा है हमारी पुरानी वाली वीडियोस में कि ये जोन्स को कैसे ट्रेड करना है। बट अभी मार्केट में मंडे को क्या आउटलुक लेके जाओगे कि इतनी बड़ी सेल आ चुकी है, आप इस पॉइंट पे चाहे वो कोई भी सेटअप हो, मूविंग एवरेज सेटअप हो, फिबोनाची सेटअप हो, आप इस पॉइंट पे एग्रेसिव शॉट नहीं जा सकते। आप जा सकते हो शॉर्ट्स विद मीडियम क्वांटिटीज फॉर अ टारगेट ऑफ 47,000। अगेन 47,000 इज अ you know psychological number, markets can take support. So whenever there are multiple supports present in the downward जर्नी, राइट, वाई टू गो एग्रेसिव इन शॉर्ट। हम शॉर्ट्स में एग्रेसिव जब जाएंगे जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस होके इस पॉइंट पे आएगा। 48,000 हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से 600 पॉइंट्स ऊपर है, राइट। सो विल गो, विल लुक फॉर एग्रेसिव शॉट्स एट द पॉइंट्स ऑफ 48,000 और 48,200, बट टिल दैट पॉइंट वी कैन नॉट गो एग्रेसिव ऑन शॉट्स। हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके ट्रेल कर सकते हैं, बट एग्रेसिव शॉट नहीं जा सकते, राइट। वी हैव टू सी अ पुल बैक, ओके। एंड जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया है कि ये चैनल का एंड है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर देखो सिंपल है, यहाँ से एक चैनल चलता हुआ आ रहा है, अगर ब्रेक डाउन होगा तो ऐसा करके यू ब्रेक डाउन करके चला जाएगा मार्केट, ठीक है, निकल जाएगा वो। हम मिड मार्केट आपको अपडेट करेंगे एंड व्हील, मैं भी उसमें ट्रेड लूँगा, बेरिश ट्रेड, काफ़ी बड़ी ट्रेड लूँगा अगर वैसा होता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट मोमेंटम होगा। बट अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आता है, मार्केट यूँ ट्राई करेगा कि निकल जाने का वापस अबव इस पे अपर रेंज पे ऑफ दिस चैनल पे चला जाएगा, राइट। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस था फॉर मंडे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। मैं आपको आपके लिए लेवल्स मार्क कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ये मैंने आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए हैं, एंड आप यहाँ से ये जोन्स आप अपने चार्ट्स में मार्क कर लीजिए। मार्केट देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ मार्केट कैसे मूव करेगा। मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक बार इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे आके मूव कर सकता है, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो इसको ब्रेकआउट कर देगा यू, फिर मार्केट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा यू, एंड देन अगेन मार्केट इस लेवल तक आएगा। तो ये जोन्स ऐसे ट्रीट किए जाते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट अगर इसको ब्रीच करता है तो क्विक मोमेंटम यहाँ तक आएगा, मार्केट यहाँ पे साइड वेज रह के इसको ब्रेक डाउन कर देगा यू लेवल तक, राइट। तो ये कुछ मार्केट का आने वाले टाइम में मोमेंटम रह सकता है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट मंडे मॉर्निंग में आपको अपडेट करूंगा गिफ्ट निफ्टी को देख के। अभी एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है -16 पॉइंट्स। सो
we can expect a gap down, right? Okay, so I hope to see you in tomorrow's weekly and monthly analysis. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड leave a like on the video and subscribe to the channel. Please stay safe in the markets. Thanks, traders.